हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ कंपनीज की। फर्स्ट सेक्शन OPC, सेक्शन 2 क्लॉज 62 एंड 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। नंबर ऑफ मेंबर्स ओनली 1, ओनली अ प्राइवेट कंपनी, देन लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और an unlimited company. If it is registered as a company limited by shares, then it shall have two restrictions. पहला, right of transfer of shares is restricted and prohibits invitation to the public to subscribe to the securities. अगली बात, only a single member and a single director. There are additional requirements. First, only a natural person who is Indian citizen and resident in India shall be eligible to become a member. Secondly, resident in India का मतलब 182 days or more during the immediately preceding one calendar year. Financial year नहीं, calendar year. Secondly, MOA shall specify the name of the nominee who shall become the member in case of death or incapacity of the member. I hope आपको याद हो एग्जाम्पल OP चौटाला और NP चौटाला का। अगली बात, only one person can be a member in only one OPC and a nominee in another OPC. That means एक पर्सन सिर्फ एक ही OPC बना सकता है और दूसरी OPC में नॉमिनी हो सकता है। बट अगर because of death or incapacity he becomes a member in another OPC, then he shall choose within 180 days in which OPC to continue as member. Then conversion of a OPC into a private company or a public company. Rule 6 sub rule 1 में दे रखा है, if paid up capital exceeds rupees 50 lakhs and the average annual turnover कितने साल की, 3 preceding consecutive financial years, immediately 3 preceding consecutive financial years exceeds rupees 2 crore. So दो limits, paid up capital exceeds 50 lakhs and average annual turnover of immediately 3 preceding years exceed rupees 2 crores. Then it has to compulsorily convert itself into either a private company under 2 clause 68 or a public company under 2 clause 71. चलिए नेक्स्ट बात, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी एंड सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। ये किसके रिगार्डिंग है? 3(1)(b) नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम कितने होते हैं प्राइवेट में? 2 क्लॉज 68 रिस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल्स बताता है 3 रिस्ट्रिक्शंस। पहली बात, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट टू एक्सीड 200, हाँ, जॉइंट शेयर होल्डर्स टू बी ट्रीटेड एज 1 and employees who have become members at the time of employment and have continued shall not be included. Then prohibits invitation to the public to subscribe to the securities of the company. Next section, public company 2 clause 71 and 3(1)(a), 3 subsection 1 clause A. minimum number of members in a public company कितने चाहिए? कम से कम 7। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 71 में याद करिए 71 कहाँ से लिया था? कम से कम 7 मेंबर्स जिससे एक पब्लिक कंपनी बनेगी, दैट मीन्स 2 क्लॉज 71। सो अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दैट मीन्स अगर आप प्राइवेट कंपनी भी हैं लेकिन आप सब्सिडरी हैं पब्लिक कंपनी की तो आपको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। देन conversion of a private company into a public company, conversion of a private company into public company, section 14 subsection 1 steps दे रखे थे। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा, याद करिए हमने शादी की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो सबसे पहली होगी बोर्ड मीटिंग, वहाँ पे इट शैल बी हेल्ड, डिस्कस्ड, वोटेड एंड पास्ड। क्या पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। देन डेट, डे, टाइम एंड place shall be decided and notice shall be sent regarding TEA. T is text of resolution, E explanatory statement and A is agenda. Then general meeting में क्या होगा बताइए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, किस लिए?
पहली बात डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है। जो 3 रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी जाएंगी, और ये रिस्ट्रिक्शंस हटाते ही अ प्राइवेट कंपनी सीजेस टू बी अ पब्लिक कंपनी। एप्लीकेशन शैल बी मेड टू ट्रिब्यूनल within 3 months of passing the special resolution for approving such a conversion। देन अगली बात, जैसी अप्रूवल मिलेगा तो आरओसी के पास विद इन 15 डेज, कंपनी की लोग आई आरओसी, उसके बाद विद इन 15 डेज क्या क्या सबमिट करना है बताइए, एसआर की कॉपी, देन ऑल्टर्ड एओए एंड ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। एप्लीकेशन टू आरओसी शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर INC 27। याद करिए 27 हमने याद कर रहा था, कोई एक फंडा लगाया था 2 और 7 का। यस, देन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम थे प्राइवेट कंपनी में तो कम से कम बढ़ा के 7 करने होंगे, और अगर डायरेक्टर्स 2 थे तो फिर बढ़ाकर इन्हें कम से कम 3 करना होगा एज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सिमिलरली हमने कन्वर्जन करा था पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। फ़र्क सिर्फ इतना दोस्तों कि यहाँ पे प्राइवेट वर्ड ऐड करा जाएगा। दूसरी बात याद करिए, यहाँ पे पोस्टल बैलेट के थ्रू हमें रेजोल्यूशन पास करना होगा और रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड करनी होंगी, बाकी सब सेम, म्यूचैटिस म्यूचेंटिस। नेक्स्ट बात, हमने बात करी नेचर ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। 3 की बात करी थी, कंपनी लाइबिलिटी, यस, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी मेंबर्स की कितनी होती है बताइए, अनपेड ऑन शेयर्स। देन गारंटी अमाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंट्रीब्यूट करना होता है, और अनलिमिटेड कंपनी की केस में जितना भी अमाउंट चाहिए हो डेट्स पे ऑफ करने के लिए उतना मेंबर को कंट्रीब्यूट करना होगा। अगली बात, 2 clause 85 स्मॉल कंपनी। 2 clause 85 स्मॉल कंपनी, कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग पेड अप कैपिटल कितना, अप टू ₹50 lakhs एंड टर्नओवर अप टू 2 crores एज पर लास्ट P&L। लेकिन किस पर अप्लाई नहीं होता, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी पे और सेक्शन 8 कंपनीज पे, और साथ ही जो भी अंडर स्पेशल एक्ट कवर्ड हो। नेक्स्ट बात, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन करी 2 clause 46 एंड 2 clause 87 में। 2 clause 46 डिफाइन करता है होल्डिंग कंपनी को, इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरीज। हमने बात करी थी कि मम्मी पापा होल्डिंग है और बच्चे सब्सिडरी हैं, तो इन रिलेशन टू 1 और मोर कंपनीज बच्चे हैं अगर, तो इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज, अ कंपनी का मतलब मम्मी पापा, ऑफ विच सच कंपनीज दैट मीन्स बच्चे आर सब्सिडरी। 2 clause 87 डिफाइन करता है सब्सिडरी कंपनी को, जो कि बोलता है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करे, ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी in which the holding company controls, number 1, what? The composition of the board of directors, or controls more than 1/2, that means more than 50% of the TSC। TSC क्या है? Total share capital, either by itself or together with 1 or more of its subsidiary, that means directly or इनडायरेक्टली। कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड हमने देख लिया था कि अगर सिर्फ एच लिमिटेड के पास ही राइट है टू नॉमिनेट द डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड, या फिर एच लिमिटेड का MODE, M क्या था बताइए, मैनेजर, O ऑफिसर, D डायरेक्टर और E एम्प्लॉय, सिर्फ बन सकते हैं डायरेक्टर इन एस लिमिटेड, या फिर अगर कोई बाहरी जाना है जो बनना चाहता है सब्सिडरी एस लिमिटेड में डायरेक्टर, तो उसको किसकी परमिशन की जरूरत है, एच लिमिटेड की। देन अगली बात आपने बात बोली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देन थर्ड बात करी इनडायरेक्ट कंट्रोल, दैट अगर ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी, सो सी विल ऑल्सो बी सब्सिडरी ऑफ ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 19 था 19 कि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकता।
No company shall hold any shares in its holding company, right, either by itself or through its nominee, and no holding company shall allot or transfer its shares to its subsidiary company, and if any such allotment is made it shall be void. So ना ही subsidiary company और ना ही holding company एक दूसरे में shares खरीद पाएंगे once they become holding subsidiary. अगली बात, प्रोवाइजो थे जिसमें 3 एक्सेप्शन थी कि अगर सब्सिडरी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं, देन ट्रस्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर सब्सिडरी ने शेयर्स खरीदे थे अपनी होल्डिंग कंपनी में कब, बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी, तो नो इश्यूज. बट राइट टू वोट ओनली विद रिगार्ड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रस्टी की तरह ही अवेलेबल होंगे, नॉट एज द शेयर होल्डर इटसेल्फ. नेक्स्ट सेक्शन, एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी 2 clause 6 हमने पिक किया. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी in which the other company has number 1 significant influence but which is not a subsidiary and includes a joint venture. तो significant influence हो but subsidiary ना हो और joint venture include होगा. Significant influence का मतलब 20% or more of the TSC or controlling the board of the directors. अगला, foreign company 2 clause 42. एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर बाय इट सेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट. बाय इट सेल्फ आप फिजिकली हो और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, एजेंट के थ्रू भी चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, और कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी और तरह से बिजनेस करे. इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन रूल्स में दे रखी है. अगली बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की. गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है 2 clause 45 में. गवर्नमेंट 4 से 5 साल रहती है तो हमने वहां से 45 पिक कर लिया, 4 से 5. 2 clause 45. इट मीन्स अ कंपनी इन विच 51% ऑफ द PUC, PUC क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG, SG और बोथ. CG, SG और बोथ. साथ ही साथ हाँ जी, अगर सब्सिडरी जो होगी गवर्नमेंट कंपनी की क्या वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? द आंसर इज यस. देन लिस्टेड कंपनी कौन सी दोस्तों? 2 clause 51 में वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. सिक्योरिटीज कहां पे डिफाइंड है? हाँ जी, SCRA में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में. चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 8 कंपनीज, ऑल्सो नोन एज लाइसेंस कंपनीज, दैट मीन्स कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. एलिजिबिलिटी कौन सी है? वो कंपनीज बताइए विच आर प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दैट मीन्स न्यू कंपनीज जो फॉर्मुलेट हो रही हैं विच फुलफिल्स कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8. इस सेक्शन की जो कंडीशंस फुलफिल कर दे, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8. दैट मीन्स अगर आप सेक्शन 8 में नहीं थे, लेट्स से प्रॉफिट मेकिंग थे और अपने आप को अब आप चैरिटेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी. नाउ लेट्स कम टू द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8. कंडीशंस क्या है? 3 कंडीशंस है जी. ऑब्जेक्ट्स ऑफ सच कंपनीज शैल बी टू प्रमोट SRCC PRESS press आओ AO SRCC press आओ. S stands for science, R stands for religion, C stands for commerce, C stands for charity, P protection of environment, R research, E education, S sports, S social welfare, A arts, O other useful objects. Let's repeat: S science, R religion, C commerce, C charity, P protection of environment, R research, E education, S sports, S social welfare, A arts और A के बाद O क्या है? Other useful objects. Then income used only for promoting the objects, and third objective, not to distribute dividend
to its members. So prohibition on payment of dividend to its members. 3 conditions. Objects कौन से? SRCC press आओ. Income only for promoting the objects. Third, prohibition on payment of dividend to its members. अगली बात, एप्लीकेशन देनी है ROC को ऑन CG अप्रूवल. ROC को देनी है एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस. वंस द लाइसेंस इज ग्रांटेड, सच कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. सो अगर कंपनी का नाम है बीइंग ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड, वंस द लाइसेंस इज ग्रांटेड दे कैन सिंपली राइट बीइंग ह्यूमन. देन लाइसेंस मिलते ही लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो वही आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, रूल्स वही रहेंगे, लेकिन बेनिफिट क्या है? अ फर्म कैन बिकम अ मेंबर. दैट मीन्स कि कल को अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी. कोई पार्टनर आके सेपरेटली मेंबरशिप क्लेम नहीं कर सकता कंपनी में. देन alteration of MOA and AOA of Section 8 companies. If MOA is to be altered, then prior approval of RD is required. RD कौन? Regional Director. अगर AOA alter करना है, so prior approval of ROC is required. So अगर नहीं करा तो revocation of license हो सकता है, one of the reasons. Then other grounds for revocation, contravention of any conditions जिसके बेसिस पे लाइसेंस मिला. Then affairs of the company are conducted in fraudulent manner or violative of objective. दोनों में फर्क है. पहला आपने फ्रॉडुलेंट काम करने के लिए करा काम, दूसरा ऑब्जेक्ट से बाहर जाके करा. अल्ट्रा वायर्स SRCC प्रेस आओ में से SRCC आपने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, लेकिन आप कर रहे हो काम प्रेस आओ वाला, तो ठीक है आपका चैरिटेबल है, लेकिन इट इज़ नॉट इन दी ऑब्जेक्ट्स. तीसरा के बाद चौथा देखिए, प्रेजुडिशियल टू दी पब्लिक इंटरेस्ट. अनफॉर्चुनेटली कई जगह ऐसा देखा जाता है, पाया जाता है कि चाइल्ड मोलेस्टेशन वगैरह जैसे केसेस सामने आते हैं. अगला केस, बट बिफोर रेवोकेशन क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. रेवोकेशन पे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड वापस लग जाएगा, जो भी एग्जेम्पशंस ग्रांटेड है वापस हो जाएंगी, एंड कंपनी शैल अप्लाई टू ROC फॉर इट्स कन्वर्जन. देन CG में ऑल्सो ऑर्डर व्हाट? वाइंडिंग अप और अमेलगमेशन. अगर amalgamation है so it will be amalgamated with a similar company with the similar objects. Then on contravention certain penalties are there, and अगर fraudulently है तो section 447 लग जाएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में डिफाइंड है. याद करने के लिए, डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट जो ROC देता है वो 4 से 5 साल के लिए देता है. 455 4 से 5, 4 5 5. सो किस लिए बनाई जाती है? कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई असेट अभी सस्ता मिल रहा है, चाहे वो इंटेंजिबल हो या टैंजिबल हो, और कोई साथ सिग्निफिकेंट आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हो, तो a company like this, an inactive company, can apply to ROC for grant of such license. Okay, that means such certificate. Application shall be made in prescribed form, which is MSc 1, and ROC will grant the certificate under MSc 2. Inactive company कौन सी? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही. क्यों भैया? बॉस, कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इस वजह से आपने FS एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी है. कब की? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स. तो ये आपकी इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन है. नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस, देन नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एंड नो FS and annual returns filed of the last 2 years. Significant accounting transaction negatively defined है. It means any transaction other than, इनको छोड़कर, दैट मीन्स जो 4 दे रखी हैं इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता. पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार या फिर एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर एनी एक्ट, या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन ऑफिस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इनको छोड़कर अगर कोई और ट्रांजैक्शन होगी तो ही वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी. अगला पॉइंट आपने करा 406 निधि कंपनीज का. निधि कंपनीज विच आर फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ cost cutting, number 1. Number 2, saving among his members, then receiving deposits from their members and giving loans to its members for their mutual benefits. That means they work only for their members, no outsiders. All right.
नेक्स्ट आपने सेक्शन किया सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन। दैट मीन्स सर्टन एसोसिएशन जो कि कंपनीज एक्ट में इलीगल मान ली जाएंगी। सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और अ पार्टनरशिप विल बी इलीगल unless registered under this act or any other act and which has more than 50 persons and carrying out its business for any beneficial purpose, that means for gain profits के लिए, provided that the number of persons shall not exceed 100. okay, that means अगर registered नहीं है, 50 से ज़्यादा है, profit making purpose है, so इस केस में इलीगल माना जाएगा। हाउएवर कल को 50 की लिमिट को 100 का लिमिट करा जा सकता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन 2 केसेस। सिंगल HUF पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि द वर्ड्स रिटन आर एन HUF। दूसरी बात, प्रोफेशनल्स अंडर स्पेशल एक्ट लाइक CA CS वगैरह पे भी अप्लाई नहीं होता। कॉन्ट्रवेंशन का फाइन 1 लाख एंड पर्सनल लायबल भी रहेगी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देन बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है। बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड है 2 क्लॉज 11 में। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब कि कोई भी एसोसिएशन अगर किसी भी एक्ट में फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेटेड है, तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है, जनरल मतलब। बट 2 क्लॉज 11 कैसे डिफाइन करता है? इट इंक्लूड्स a company incorporated outside India, that means foreign company, but does not include a cooperative society. तो cooperative society को body corporate नहीं माना जाता, and any other body corporate as may be notified by CG other than company. कंपनी को छोड़कर किसी और को अगर CG नोटिफाई कर दे इन द ऑफिशियल गैजेट, सो उनको बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में नहीं माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, here we come at the end of this chapter 2 revision. Thank you so much. Bye bye. All the best. Study hard.